اور یہ آئینہ دکھایا تھا مسلمانوں کو کہ تمہارے پاس اتنی جائیداد ہے، اگر تم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت سے کوئی مدد لینے کی. تم اپنے اسکول خود چلا سکتے ہو، اپنے میڈیکل کالجز خود چلا سکتے ہو، اتنی آمدنی ہو سکتی ہے. ہندوستان میں ریلوے کے بعد جو سب سے بڑی زمین ہے وہ مسلمانوں کی اوقاف کی ہے. موجودہ حکومت جو ہے اس کا زندگی کا مقصد اور صرف عمل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح سے رسوا کریں. اس لیے ان کی نگاہ اس زمین پر، اس سورس پر ہے جہاں کبھی مسلمان اگر جاگ جائے اور سمجھدار ہو جائے تو اپنی قوم کو کھڑا کر دے اوپر، اور وہاں بھیک مانگنے والے نہ ہوں، بھیک دینے والے بن جائیں. ہندوستان کی زیادہ تر زمینوں پہ قبضہ یہاں کی سرکار نے کر کے رکھا ہے. یعنی خود جو قابض ہے، جو زمین کو چھیننا چاہتا ہے، وہ اب وقف کا انچارج ہوگا. کچھ دن کے بعد آپ کہیں گے نماز بھی ہم پڑھائیں گے، کیونکہ تم لوگ نماز نہیں پڑھاتے، ہم پڑھائیں گے. مسلمانوں سے، بد نصیبوں سے جو آج بھی نتیج کے ساتھ ہیں، ان کی شرم، ان کی حیا، ان کو دین کچھ باقی ہے ان کا؟ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں؟ مسلمانوں نے ہند کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کریں، ان سے شادی بیاہ نہ کریں، ان کے کھانوں میں نہ جائیں. کہ بھئی یہ سرکار تو کمزور ہو گئی ہے دیکھنے میں، لیکن مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے اور مضبوط ہو گئی ہے. مندر کا جو ٹرسٹ ہے اس پہ کبھی پوچھا آپ نے کہ کھربوں روپیہ تمہارے پاس ہے کس کام کے لیے ہوتا ہے؟ لاکھوں کروڑوں کھربوں کا جو چڑھاوا ہوتا ہے اس کا ریفارم نہیں کیا تم نے آج تک. یہ کچھ نہیں ہے، صرف اور صرف مسلم دشمنی. وقف قبضہ کرنا چاہتے ہیں، غیر مسلم آ کے کرے گا؟ ہماری جائیداد میں وہ آئیں گے؟ اگر ایسے ہی ہے تو ان کے مندروں میں جو پنڈتوں نے ہزاروں سال سے قبضہ کیا ہوا ہے وہاں دلتوں کو کیوں نہیں بٹھالتے؟ بٹھا لیں مندروں میں جا کے دلتوں کو. ایودھیا جس کے اندر انہوں نے اتنا بڑا مندر بنایا، یہ مسلمانوں کی زمین تھی، یہ معلوم ہے سب کو. یہ وہاں کے نواب مسلمان تھے. ارے ہمارے مسلمان کو وہاں بٹھا دو کمیٹی میں، ہم سب ٹھیک کر دیں گے. وہاں جو روز ہو رہا کہ زمینیں بیچی گئی، قبضہ ہوا. کہ اگر کوئی ان کا ورکر، اس کو ٹکٹ نہیں ملا، الیکشن ہار گیا، تو ان کا جا کے وقف بورڈ کا چیئرمین بنا دو اسے. اب جو وقف بورڈ کا وہ چیئرمین بنا، وہ سیاسی طور پر اس کو گاڑی مل گئی، گھوڑا مل گیا، منتری کا پودا مل گیا. اسے وقف کے بارے میں یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وقف کی زمین کسی کی نہیں ہے، یہ اللہ کی زمین ہے. جو آدمی اللہ کی زمین کو غصب کر لے اس سے زیادہ دردناک و بدنام کون انسان ہوگا. ہندوستان کے وقف کی جو بربادی لگی وہ ان لوگوں کی وجہ سے لگی جن کو وقف قاف کے بارے میں کچھ نہیں معلوم تھا، اور وہ سیاسی طور پہ ایڈجسٹ کیے گئے. اسی وجہ سے جب یہ مدرسہ بورڈ یہ لوگ لائے تھے، میں اس وقت پارلیمنٹ کا ممبر تھا، میں نے مدرسہ بورڈ کی مخالفت کی، اور مجھ سے کانگریس کے لوگوں نے کہا، اور مجھ سے سبل صاحب ایسے لوگوں نے جو میرے بڑے دوست ہیں، کہ تم تو بہت بڑے کٹر پنتھی نکلے. تو میں نے اس وقت یہی کہا تھا کہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ ہمارے اوقاف کا کیا ہوا ہے. وقف کے اندر ابھی تک چیئرمین مسلمان، سی او مسلمان، متولی مسلمان، سب مسلمان، اور سب نے بیچ کھایا. اصلاح کی ضرورت تھی تو اس پہ آتے. تم یہ کہہ دیتے کہ ہم اس آدمی کو بنائیں گے جو یہ سمجھتا ہے کہ وقف کی زمین اللہ کی زمین ہے، تم مالک نہیں ہو، تم ٹرسٹی ہو. یہ جھوٹے لوگ ہیں، یہ صبح سے شام تک صرف جھوٹ بولتے ہیں. ارے کوئی نام تو بتاؤ کہ کس تنظیم سے بات کی تم نے؟ پرسنل لا بورڈ سے بات کری، جماعت علماء سے بات کری، جماعت اسلامی سے بات کری. ارے اتنی جماعتیں ہیں، کسی سے بات کری؟ کسی انڈیویجول پروفیسر سے بات کری؟ کسی یونیورسٹی کے اسلامک سینٹر سے بات کری؟ ارے جھوٹا آدمی ہے. جب پرائم منسٹر اتنا بڑا جھوٹا ہے تو سب اس کی ٹی وی جھوٹی ہے. لیکن کاش ہم نے وقت کو اچھی طرح سے چلایا ہوتا، کاش ہم نے اچھے لوگ بھیجے ہوتے. اب اگر کوئی حکومت بدلتی ہے تو ہمارا پریشر ہونا چاہیے کہ وقف کا چیئرمین وہی بنے گا
जो दीन को समझता होगा, जो कुरान को समझता होगा, जो वक्फ की ज़मीन को समझता होगा कि ये तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है। लोकसभा में वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेकर गर्मा गर्म बहस जारी है। पक्ष अपने दावे पेश कर रहा है और विपक्ष की अपनी दलीलें हैं कि वक्फ एक्ट बन पाएगा, वक्फ का कानून बन पाएगा, और उससे पहले सबसे बड़ी बात यह कि वक्फ एक्चुअली है क्या, इसका भविष्य क्या है, इसका इतिहास क्या है। आमतौर पे बहुत बड़ी आबादी अभी इसी मुगालते में है, इसी गलतफहमी में है कि वक्फ की प्रॉपर्टीज़ का सीधा ताल्लुक़ या संबंध है किससे। तो हमारे साथ में पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीब साहब मौजूद हैं, जो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, और ख़ास तौर पर मुसलमानों के मसलों को लेकर, मुसलमानों के मामलों को लेकर आम तौर पर अपनी राय बेबाकी से रखने में पूरे देश में उनकी मकबूलियत है, लोकप्रियता है। और आज सर आप हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया, आपने अपना बेशकीमती वक्त हमें दिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ सर, शुरुआत में इससे करना चाहूँगा, बहुत सारे सवाल मैं पूछना चाहूँगा वक्फ के बाबत, लेकिन शुरुआत इस बात से कि वक्फ का एक्चुअली मतलब क्या है। बहुत सारे लोगों को, अगर मैं कहूँ कि करोड़ों लोगों को इस बात का इल्म नहीं है, वो पूरी तरह से नावाकिफ़ हैं इस बात को लेकर कि वक्फ का लिटरल मतलब क्या है, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, वक्फ का वजूद जो है वो तो इस्लाम के शुरू के वक्त से है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी कुछ ज़मीन को वक्फ किया था, यानी वो ये कहा था कि इसकी जो आमदनी होगी वो गरीबों को मिलेगी, उसके लिए जो भी बेवा है या वो है। वक्फ वो चीज़ है, इस्लाम में इसका प्रोविज़न है कि आप अपनी कोई भी ऐसी जायदाद जिसको आप वक्फ करते हैं वो उसके जो मकासद हैं उसमें बयान होते हैं कि ये स्कूल के लिए होगी, मेडिकल कॉलेज के लिए होगी, यतीमों के लिए होगी। तो ये एक रिफाही काम है जो एक बड़ा यूनिक पार्ट है इस्लाम का। तो आपको अंदाज़ा होगा ये कि बहुत से अरब मुल्कों में, सऊदी अरेबिया में जो आज कहलाता है, वहाँ पर भी बहुत से कुएँ यानी कुएँ तक को कहा कि ये पानी जो है, क्योंकि पहले पानी की लोग किसी कुएं पर जिसका कब्ज़ा है दूसरा पानी नहीं ले सकता था, उनका नहीं, ये कुआं हमने वक्फ कर दिया, यानी जो भी आए जिसको भी ज़रूरत हो वो उससे ले जाए। बागात की आमदनी, मस्जिदें, ये कि भाई कब्रिस्तान, इन सब की वक्फ होते थे। हिंदुस्तान में शुरू से ये सिलसिला रहा कि जहाँ जहाँ मुसलमान गए दुनिया भर में, वहाँ उन्होंने अपनी ज़मीनों को वक्फ किया। मौजूदा जो वक्फ बोर्ड का जो इस वक्त एक्ट है, ये 1995 के एक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें थीं जिसमें यह था कि आप वक्फ को बेच सकते हैं, प्रॉपर्टी को। ये एक जिसका बहुत मिसयूज़ हुआ था, बड़ी अहम प्रॉपर्टीज़ को लोगों ने बेच दिया। तो 2013 में एक अमेंडमेंट लाया गया, एक सेलेक्ट कमेटी बनी, मैं उसका मेंबर था, पार्लियामेंट्री कमेटी का, और अभी खालिद साहब चले गए जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे, वो जॉइंट सेक्रेटरी थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। उसमें हम लोगों ने 6 महीने तक हिंदुस्तान के हर उस स्टेक होल्डर को बुलाया, उससे मशवरे किए और उससे ये कहा कि भाई हम वक्फ की जायदादों को कैसे बचाएंगे। जब वो बन गया, क्योंकि ज़्यादातर औकाफ ऐसे हैं जहाँ लोगों ने खुर्द-बुर्द की है। मिसाल के तौर पर एक वक्फ की ज़मीन आपको एक दुकान दे दी गई, वो मालूम है 20 साल से आप उसी दुकान में हैं, किराया 20 साल पुराना दे रहे हैं। मिसाल के तौर पर दिल्ली की जो न्यू दिल्ली की जो मस्जिद है पहाड़गंज की तरफ, वहाँ एक मस्जिद है, वो वक्फ की मस्जिद है, उसके नीचे दुकानें, उसमें जो दुकानदार थे वो 10 या 15 रुपए दे रहे थे, और जो बगल की दुकानें उसी साइज़ की थीं वहाँ वो 2500 मिल रहे थे, क्योंकि उठा दिए गए थे। जी जी। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए 2013 में जो वक्फ अमेंडमेंट बिल पास हुआ, उसमें हमने वक्फ को मजबूत किया। और वक्फ की आमदनी अगर बढ़ेगी, देखिए सच्चर कमेटी की जो रिपोर्ट है उसमें मुसलमान बड़ी बगलें बह जाता है कि साहब उन्होंने बहुत बड़ा काम किया।
آپ یقین کریں انہوں نے کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا. بڑا کام یہ تھا کہ اس ملک میں سب سے زیادہ پاسماندہ اور غریب کوئی طبقہ ہے تو وہ مسلمان ہے, دنیا جانتی تھی. انہوں نے ڈاکومنٹ کر دیا تھا, یہ ان کا احسان تھا. لیکن جو ان کا سب سے بڑا کام تھا اور جس کو لوگ نہیں ذکر کرتے ہیں وہ ان کا چیپٹر 10 ہے, جس میں انہوں نے اوقاف کے, ہندوستان میں مسلمانوں کے اوقاف کا تجزیہ کیا تھا اور یہ آئینہ دکھایا تھا مسلمانوں کو کہ تمہارے پاس اتنی جائیداد ہے, اگر تم اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرو تو تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے حکومت سے کوئی مدد لینے کی. تم اپنے اسکول خود چلا سکتے ہو, اپنے میڈیکل کالجز خود چلا سکتے ہو, اتنی آمدنی ہو سکتی ہے. ہندوستان میں ریلوے کے بعد جو سب سے بڑی زمین ہے وہ مسلمانوں کی اوقاف کی ہے. جی. موجودہ حکومت جو ہے اس کا زندگی کا مقصد اور صرف عمل یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو کس طرح سے رسوا کریں. اس لیے ان کی نگاہ اس زمین پر, اس سورس پر ہے جہاں کبھی مسلمان اگر جاگ جائے اور سمجھدار ہو جائے تو اپنی قوم کو کھڑا کر دے اوپر, اور وہاں بھیک مانگنے والے نہ ہوں, بھیک دینے والے بن جائیں. اس لیے اس سورس کو توڑنے کے لیے یہ جو بل لایا گیا اس میں کسی مسلمان اسٹیک ہولڈر کا ذکر تک نہیں ہے, اور یہ کہا گیا کہ اس کے اندر ہم اب غیر مسلموں کو ممبر بنائیں گے, جبکہ وہاں یہ ہے کہ وفد کے اندر وہ ممبر ہوگا جس کو دینی علم بھی شامل ہے اور مسلمان ہے. اب کہا کہ نہ, اب غیر مسلم آئے گا. وفد کی زمینوں کے لیے ایک سرویر ہوتا تھا جو زمینوں کا سروے کر کے دیکھتا تھا کہ یہ موجود ہے, قبضہ تو نہیں ہوا ہے, اس کے اوقاف کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہیں یا نہیں ہیں. اب وہ ختم کر کے ڈی ایم دیکھے گا, ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ, اور ہندوستان کی زیادہ تر زمینوں پہ قبضہ یہاں کی سرکار نے کر کے رکھا ہے. یعنی خود جو قابض ہے, جو زمین کو چھیننا چاہتا ہے, وہ اب وقف کا انچارج ہوگا. یہ حیرت انگیز بات ہے. ہم لوگوں نے اپنی جو ہماری تنظیم ہے IMCR کی طرف سے اپوزیشن کے لوگوں کو خط لکھے جب ہم کو یہ شبہ ہوا, یہ ہوا میں خبریں چل رہی تھیں, اور ان کے اپوزیشن کے ان سارے لوگوں سے, ادھر ٹھاکرے کی پارٹی سے, ان سے, یہاں تک کہ TDP اور نتیش کمار کی پارٹی میں JDU سے آج صبح بھی انہوں نے ہم سے کہا کہ ہم سلیکٹ کمیٹی کو بھیجیں گے. میں نے کہا سلیکٹ کمیٹی کے کیا معنی ہیں؟ ارے یہ تو وہ بل ہے جو ہمارے اپنے فنڈامنٹل رائٹ کو چھین رہا ہے, ہماری اپنی زمین کو چھین رہا ہے. اگر یہی آپ کا تصور ہے تو کچھ دن کے بعد آپ کہیں گے نماز بھی ہم پڑھائیں گے, کیونکہ تم لوگ نماز نہیں پڑھاتے, ہم پڑھائیں گے. اب جب وہ ہماری اوقاف کو چھین رہے ہیں اور جنتا دل یو کا لیڈر للن سنگھ پارلیمنٹ میں اس کو جسٹیفائی کر رہا ہے, تو میں آپ کے چینل کے تھرو ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, ان مسلمانوں سے, بد نصیبوں سے جو آج بھی نتیش کے ساتھ ہیں, ان کی شرم, ان کی حیا, ان کو دین کچھ باقی ہے ان کا؟ ہم ان کے ساتھ کیا رویہ اختیار کریں؟ مسلمانوں نے ہند کو یہ چاہیے کہ ان کے ساتھ قطع تعلق کریں, ان سے شادی بیاہ نہ کریں, ان کے کھانوں میں نہ جائیں. ابھی انہوں نے سلیکٹ کمیٹی کو بھیج دیا ہے کیونکہ TDPC نے بھی تھوڑا سپورٹ کیا, اپوزیشن پوری طریقے سے لگ گئی, اور ٹوٹل یہ انلیگل ہے, انکانسٹیٹیوشنل ہے. میں یہ سمجھتا ہوں مسلمانوں کو آپ کے چینل کے تھرو کہنا چاہتا ہوں کہ لڑائی ختم نہیں ہوئی ہے, خطرہ ٹل گیا ہے کچھ دنوں کے لیے. یہ جب تک کہ پارلیمنٹری کمیٹی میں رہے گا ہم کو ویجیلنٹ رہنا پڑے گا, ہم کو ان سارے اسٹاک ہولڈر سے بات کرنی پڑے گی. ہم کو پریزیڈنٹ آف انڈیا کو چاہیے کہ ہم جہاں جہاں جائیں ہر جگہ سے پریزیڈنٹ آف انڈیا کو یہ لکھیں کہ اس ملک میں جو ہمارے لیے جو قانون ہے 19 ہے, 25 ہے, 26 ہے, 30 ہے, 31 ہے, یہ رہے گا یا نہیں رہے گا؟ اگر ہے تو ہمارے حقوق ہیں یا نہیں ہے؟ جی جی. تو ہم کو ایک طرف ان سے لڑنا ہے, دوسری طرف نتیش کمار ایسی پارٹیاں جو اپنی ہوس اور اپنی لالچ, اپنی دولت کمانے کے چول میں
इस मुल्क में जो गदर करने जा रहे हैं, जिस तरीके से हमारे साथ सितम कर रहे हैं, उनका साथ न दें। और तीसरी बात ये कि ये खामोश न बैठें। मदरसों का हाल यूपी में आपने देखा क्या हुआ है, मदरसे छीने जा रहे हैं। वहाँ के बच्चों से कहा जा रहा है कि आप जाइए स्कूलों में पढ़िए, मदरसे वहाँ छीने जा रहे हैं। हमारे जितने कवानीन हैं वो हमसे छीन लिए गए हैं। यहाँ तक कि अब जो एक मंच बना है, राष्ट्रीय मंच, उसके लोग उससे अप्रूव किए हुए इमाम गुड़गांव में नमाज़ पढ़ाते हैं, दूसरा इमाम पढ़ा नहीं सकता। तो कब तक हम चुप रहेंगे जी और कब तक हम खामोश रहेंगे? आज ये एक बात अभी अफजल साहब ने बहुत अच्छी कही कि भाई ये सरकार तो कमज़ोर हो गई है देखने में, लेकिन मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए और मजबूत हो गई है। तो ये सोचना पड़ेगा हम सबको। अदीब साहब, बहुत सारी बातें आपने बताई पूरे वक्फ को लेकर। मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और आम जो देश का नागरिक है वो ये जानना और समझना चाह रहा है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ का अगर हम जिक्र करें, इनके बारे में ख़ास तौर पर अगर हम बातचीत करना चाहें, तो क्या कुछ कहेंगे आप प्रॉपर्टीज़ को लेकर? कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं देश में जिनको वक्फ में शामिल किया जा रहा है? देखिए, ये जो वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, वक्फ की प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो लाखों के अंदर हैं। ये क्योंकि ये सिलसिला आज का नहीं है, ये तो प्रॉफिट मोहम्मद के ज़माने से है। नहीं, आम जो शख्स है उसका ख्याल ये है कि मस्जिद और मदारिस तक बस महदूद है। मैं बताता हूँ जी। मंदिरों का एक ट्रस्ट होता है जी। आपने मंदिरों के ट्रस्ट में देखा होगा कि जितनी दौलत है उसका किसी को पता है जी। अभी तो ये कह रहे हैं कि साहब वो वहाँ सब जमा है। वक्फ की ज़मीन जो होती है, जो वक्फ की आमदनी जो होती है, उससे गरीब बेवाओं को तालीम के लिए, मस्जिद के इमामों के लिए, मुख्तलिफ फलाही काम के लिए वहाँ से पैसे दिए जाते हैं। इस फलाही काम होता है वहाँ। मंदिर का जो ट्रस्ट है उस पे कभी पूछा आपने कि खरबों रुपया तुम्हारे पास है, किस काम के लिए होता है? लाखों करोड़ों खरबों का जो चढ़ावा होता है उसका रिफॉर्म नहीं किया तुमने आज तक। ये कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम दुश्मनी है। लेकिन जो केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं किरण रिजिजू, आज मैं उनका पूरा वक्तव्य सुन रहा था, उनका भाषण सुन रहा था लोकसभा में। उनका ये कहना है कि वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर जो है माफियाओं का कब्जा है, हम उस कब्जे को छुड़ाना चाहते हैं। उनके इस दावे से इत्तेफाक रखते हैं आप? वक्फ काउंसिल कब्जा करना चाहते हैं, गैर मुस्लिम आके करेगा? हमारी जायदाद में वो आएंगे? अगर ऐसे ही है तो उनके मंदिरों में जो पंडितों ने हज़ारों साल से कब्जा किया हुआ है, वहाँ दलितों को क्यों नहीं बिठालते? बिठा लें मंदिरों में जाके दलितों को। अयोध्या जिसके अंदर उन्होंने इतना बड़ा मंदिर बनाया, ये मुसलमानों की ज़मीन थी, ये मालूम है सबको। ये वहाँ के नवाब मुसलमान थे। अरे हमारे मुसलमान को वहाँ बिठा दो कमेटी में, हम सब ठीक कर देंगे। वहाँ जो रोज़ हो रहा कि ज़मीनें बेची गई, कब्ज़ा हुआ, अयोध्या में तो यही सब बता रहे हैं ना कि ज़मीनों का बड़ा घपला हुआ है। तो वहाँ हम मुसलमानों को भेज दो, हम तुम्हें बुला लेते हैं, आ जाओ। लेकिन अदीब साहब, इस बात से तो आप भी इनकार नहीं करते हैं, और आप बल्कि कहते रहे हैं। मैंने पहले इंटरव्यू आपका किया था, उस वक्त में आपने बात कही थी कि मुसलमानों का जो एक बहुत बड़ा तबका जो वक्फ बोर्ड्स को संभालता है, जो जिम्मेदारान बने हुए हैं, जो वक्फ ऑफिशियल्स जो हैं, उन पर बहुत तरह के इल्ज़ाम लगते रहे हैं, बहुत सारे आरोप लगते रहे कि उन्होंने वक्फ प्रॉपर्टीज़ पर कब्जा किया है, सेल किया है वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। तो इस बाबत क्या कुछ कहेंगे आप? बिल्कुल, ये हकीकत है। अगर मुसलमान, क्या ये क्यों बर्बादी लगी, इसकी वजह समझिए जी। इस मुल्क में एक बड़ा बदनीसी ट्रेंड चला जी। पॉलिटिकल पार्टीज़ का, कांग्रेस से लेकर हर जमात में, कि अगर कोई उनका वर्कर, उसको टिकट नहीं मिला, इलेक्शन हार गया, तो उनका जाके वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दो उसे। जी। अब जो वक्फ बोर्ड का वो चेयरमैन बना, वो सियासी तौर पर उसको गाड़ी मिल गई, घोड़ा मिल गया, मंत्री का पौधा मिल गया। उसे वक्फ के बारे में ये मालूम ही नहीं है कि वक्फ की ज़मीन किसी की नहीं है, ये अल्लाह की ज़मीन है। जब आप कोई ज़मीन, कोई अपनी जायदाद वक्फ करते हैं तो अल्लाह के नाम करते हैं। आप उसके ट्रस्टी हैं, आप उसके मैनेजर हैं, मालिक नहीं हैं। बदनसीबी से जो चेयरमैन बनाया जाता है,
अगर इस मुल्क में ये रवाज होता, उस आदमी को चेयरमैन बनाते जो दीन को समझता है, जो ये जानता है कि वफ़ की ज़मीन उसकी नहीं है, वो अल्लाह की ज़मीन है। जो आदमी अल्लाह की ज़मीन को गज़ब कर ले, उससे ज़्यादा दर्दनाक और बदनाम कौन इंसान होगा। हिंदुस्तान के वफ़ की जो बर्बादी लगी, वो उन लोगों की वजह से लगी जिनको वफ़ क़ाफ़ के बारे में कुछ नहीं मालूम था, और वो सियासी तौर पर एडजस्ट किए गए। इसी वजह से जब ये मदरसा बोर्ड ये लोग लाए थे, मैं उस वक्त पार्लियामेंट का मेंबर था, मैंने मदरसा बोर्ड की मुखालफत की, और मुझसे कांग्रेस के लोगों ने कहा, और मुझसे सिब्बल साहब ऐसे लोगों ने जो मेरे बड़े दोस्त हैं, कि तुम तो बहुत बड़े कट्टरपंथी निकले। तो मैंने उस वक्त यही कहा था कि आपको अंदाज़ा नहीं है कि हमारे औकाफ का क्या हुआ है। अगर पॉलिटिकल आदमी मदरसा बोर्ड चलाएगा तो वहाँ भी बेचेगा। अल्लाह का शुक्र है कि वो उस वक्त नहीं कर पाए वो लोग। तो ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल हकीकत है। वफ़ के अंदर अभी तक चेयरमैन मुसलमान, CEO मुसलमान, मुतवल्ली मुसलमान, सब मुसलमान, और सब ने बेच खाया। इस्लाह की ज़रूरत थी तो इस पे आते। तुम ये कह देते कि हम उस आदमी को बनाएंगे जो ये समझता है कि वफ़ की ज़मीन अल्लाह की ज़मीन है, तुम मालिक नहीं हो, तुम ट्रस्टी हो। और किरण रिजिजू ने आरिफ साहब ये भी कहा है, और ये दावा किया है आज संसद में, कि बहुत सारे मुस्लिम संगठनों ने उनसे मुलाकात की है, बहुत सारे मुसलमानों के समूह ने उनसे मुलाकात की, और वो चाहते हैं कि बिल बने, कानून बने। उन्होंने ये दावा किया है। कर दूं, ये झूठे लोग हैं, ये सुबह से शाम तक सिर्फ झूठ बोलते हैं। अरे कोई नाम तो बताओ कि किस तंजीम से बात की तुमने? पर्सनल लॉ बोर्ड से बात करी, जमात उलमा से बात करी, जमात इस्लामी से बात करी। अरे इतनी जमातें हैं, किसी से बात करी? किसी इंडिविजुअल प्रोफेसर से बात करी? किसी यूनिवर्सिटी के इस्लामिक सेंटर से बात करी? अरे झूठा आदमी है। जब प्राइम मिनिस्टर इतना बड़ा झूठा है तो सब उसकी टीवी झूठी है, सिर्फ और सिर्फ झूठ। तो क्या ये मान लिया जाए कि जिस तरह से विपक्ष ने स्टैंड लिया है, इंडिया ब्लॉक ने जो अपनी एक तरह से रुख दिखाया है पॉजिटिव, और कहा है कि हम इसका विरोध करते हैं, मुखालफत करते हैं, क्या आप मानते हैं कि विपक्ष जो है सही दिशा में जा रहा है इस मसले को लेकर? मैं उनका मशकूर हूँ जी, और मैं समझता हूँ कि उन्होंने सही स्टैंड लिया है। और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर फिर भी किसी तरीके से ये लोग पास कर लेते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे पार्टियां हैं, JDU और इस टाइप के लोग जो हैं, अगर ये पास कर लेते हैं तो उनको सड़क पे आना चाहिए हमारी हिफाजत के लिए। अच्छा अदीब साहब, पार्लियामेंट के बाहर भी आना चाहिए। लोकसभा में चर्चा चल रही है, गर्मा गर्म बहस जारी है, इसके बाद में राज्यसभा में ये बिल जाना है। क्या आपको लगता है कि जो मौजूदा स्थिति है लोकसभा की भी और राज्यसभा की भी, उसे देखते हुए क्या इतना आसान होगा इसको कानून बनाना, इसमें अमेंडमेंट करना? और अगर हो गया तो क्या कुछ इसके नतीजे रहेंगे आपके हिसाब से? मैं समझता हूँ कि अब तो उनके लिए बहुत आसान तो अभी तो नहीं है फिलहाल जी, लेकिन जब तक ये इनको पावर इनके पास एब्सोल्यूट नहीं आएगी उस वक़्त तक ये नहीं करेंगे। लेकिन हम उस वक्त तक इंतज़ार हमें नहीं करना चाहिए, ना मुतमईन हो जाना चाहिए। हमें तो ये देखना है कि ये जितने भी सोर्सेज हैं, कोर्ट से लेके प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया तक, सब जगह जाना चाहिए। क्योंकि इस वक्त हमारे साथ एक खुशाइन बात यह है कि इंडिया अलायंस हमारे साथ खड़ा है। जी जी, और इंडिया अलायंस के खड़े होने की वजह से बहुत आसानी से तो नहीं पास करेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल के ज़रिए अपने मुसलमान भाइयों से कहना चाहता हूँ कि बहुत गफलत में मत रहना, अभी लड़ाई जारी है, हर सोच देखना पड़ेगा। तो आगे का भविष्य क्या है सर वक्फ का? अगर आप देखें बियॉन्ड पॉलिटिक्स देखें और बियॉन्ड इन तमाम बिल्स या एक्ट्स के देखें हम, तो आगे का भविष्य क्या होने जा रहा है वक्फ प्रॉपर्टीज़ का, वक्फ का? आज के वक्त तक तो ऐसा है कि अभी तो ये मुझे नहीं लगता कि ये पास कर पाएंगे। लेकिन काश हमने वक्फ को अच्छी तरह से चलाया होता, काश हमने अच्छे लोग भेजे होते। अब अगर कोई हुकूमत बदलती है तो हमारा प्रेशर होना चाहिए कि वक्फ का चेयरमैन वही बनेगा जो दीन को समझता होगा, जो कुरान को समझता होगा, जो वक्फ की ज़मीन को समझता होगा कि ये तुम्हारे बाप की ज़मीन नहीं है। आखिरी सवाल पूछूंगा सर मैं आपसे। पक्ष और विपक्ष की दलीलें, उनके तर्क अपनी जगह, लेकिन आपने
वक्फ प्रॉपर्टीज़ के कॉन्टेक्स्ट में पूरे देश में यात्राएं की हैं, तरह तरह के सिम्पोजियम्स आपने बुलाई हैं, बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेस में आपने शिरकत की है, हिस्सा लिया है। एज ए सिविल सोसाइटी क्या देखते हैं आप, सिविल सोसाइटी की इस बाबत क्या कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या कुछ देश को बताने की ज़रूरत है, और किस तरह का स्टैंड लेने की ज़रूरत है पूरी सिविल सोसाइटीज़ को देश भर में वक्फ एक्ट को लेकर, वक्फ बिल को लेकर? मैं आपको बताऊं, ये मुल्क जो कुछ भी बचा है, जो कुछ भी इसमें जान बाकी है, वो सिविल सोसाइटी की वजह से। जी, पॉलिटिकल पार्टी हो, चाहे वो हमारी मुसलमानों की जमातें हों, सब ने मायूस किया है, लेकिन सिविल सोसाइटी ने हमारी उम्मीदें कायम रखी हैं। और सिविल सोसाइटी जो है वो कानून को, आइन को समझती है और आइन के ज़रिए मुल्क चलाना चाहती है। ये आइन का वायलेशन है, ये कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन है, ये ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है, ये क्या कहता हूँ मैं कि इखलाकी तौर पर हर एतबार से ये वायलेशन है। और हमें यकीन है कि सिविल सोसाइटी पूरा हमारा साथ देगी, और मैं उसी में आजकल काम करता हूँ। मैं किसी पार्टी से मुंसलिक नहीं हूँ, न किसी पार्टी का मेंबर हूँ मैं, लेकिन आज भी मैं ये समझता हूँ कि इस मुल्क में अगर कभी भी हालात बेहतर होंगे तो उसमें सबसे बड़ा रोल सिविल सोसाइटी का है, हमारे उन सेकुलर हिंदू भाइयों का है जो आज भी इस मुल्क को सेकुलर बनाने के लिए दिन रात कोशां हैं, बग़ैर किसी ख्वाहिश के, बग़ैर किसी आनर के, बग़ैर किसी ओहदे के। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे मोहम्मद अदीब साहब, जिन्होंने वक्फ को लेकर तमाम तरह के सवालों के अपने एक्सपीरियंस के, अपने अनुभव के हिसाब से जवाब दिए। हालांकि ये बात अपनी जगह की लोकसभा में चर्चा गर्मा गर्म जारी है वक्फ बिल को लेकर, और उसके बाद में राज्यसभा में चर्चा होनी है। क्या ये बिल पास हो पाएगा, एक्ट बन पाएगा, कानून बन पाएगा, ये तो बाद की बात है। लेकिन ये बात सही है कि फ़िलहाल सिविल सोसाइटीज़ जो है सामने आ रही हैं, उनका विरोध जो है सामने आ चुका है, और ख़ास तौर पर जिस तरह से विपक्ष ने इस पर स्टैंड लिया है, बहुत क्लियर स्टैंड लिया है, उससे ये अंदेशा साफ हो चुका है, ये संकेत साफ हो चुका है कि वक्फ को लेकर एक्ट बनाना, वक्फ में अमेंडमेंट करना, उन प्रॉपर्टीज़ को अपने हिसाब से कंट्रोल कर पाना इतना आसान तो नहीं होगा। तो कैमरा पर्सन जगदीश के साथ मैं ज़ुबैर खान, PTC न्यूज़, दिल्ली।